The BJP has intensified its criticism of the Mamata Banerjee-led Trinamool Congress government by releasing a documentary on the tense situation in Sandesh Khali. Now, tensions brewed in Sandesh Khali following protests by women alleging sexual atrocities by TMC leader Shah Jahan Sheikh and his associates. This 20-minute film, snippets of which and screen grabs of which we're constantly showcasing on your screens, features women detailing land grabs and sexual assaults purportedly committed by Sheikh Shah Jahan and his cohorts. It underscores their struggles and the alleged exploitation by Sheikh's group without any compensation. Sheikh has evaded authorities since the 5th of January after an enforcement directorate team was attacked during a raid on Sheikh Shah Jahan's home regarding alleged irregularities in the state's public distribution system. A new documentary that has been put out by the Bharatiya Janata Party showcases the alleged land grabbing and the sexual assaults that were carried out by Sheikh Shah Jahan, Trinamool Congress member, and his associates. And it's important to note here that Sheikh Shah Jahan himself has been evading the authorities since the 5th of January. On the other hand, the National Commission for Scheduled Castes, it has also taken a suo motu cognizance. It is in Sandesh Khali in West Bengal. Meanwhile, the National Human Rights Commission, the NHRC, has also taken a suo motu cognizance of the violence that took place in Sandesh Khali. C.V. Ananda Bose, the West Bengal governor, was earlier there. Mamata Banerjee has already made her way there. What we're also picking up is that Abhishek Banerjee, TMC leader, is also likely to visit Sandesh Khali. But even as all these central officers, be it the National Human Rights Commission, be it the National Commission for Scheduled Caste, be it the DGP of West Bengal being pulled up, what is essentially happening in Sandesh Khali apart from political brinkmanship? That is what we're going to figure out. My colleague Shoma Das joins us on the broadcast here. Shoma, what can you tell us at the moment? We know, as a matter of fact, that NHRC officer is in West Bengal. North 24 Paraganas West Bengal DGP को भी संदेश खाली बुलाया गया था. उसके बाद अभी हाल ही में बीजेपी ने रिलीज की इस डॉक्यूमेंट्री में, जिसमें 20 मिनट में कई औरतों के बयान भी मौजूद हैं. पॉलिटिकल और राजनीति को साइड रख दिया जाए अगर एक सेकंड के लिए, तो इस समय संदेश खाली के क्या हाल हैं, वायलेंस और टेंशन के बारे में आप क्या बता सकते हैं? हाँ, देखिए, संदेश खाली में अभी एक ही डिमांड है. संदेश खाली वासी जो है उसका तो एक ही चाहत है, एक ही डिमांड है कि शेख शाहजहां को अरेस्ट किया जाए. हम लोग देखा है, काली देखा है, वेस्ट बंगाल की जो डीजी है, डीजी कल पहुंच गया संदेश खाली में. संदेश खाली बेसिकली एक आइलैंड है. वहाँ पे कल रात भर उसने दौड़ाया, जो जो जगह है हर किनारा पे वो सर्च किया. फिर आज सुबह भी हम लोग देखा है कि डीजी वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है संदेश खाली में पुलिस स्टेशन, वहाँ पे हाई मीटिंग भी किया. फिर हमने देखा है कि हाई फोर्स लेके वो छानबीन किया. फिर राजीव कुमार डीजी उसने जो बोला, पत्रकार लोग जो क्वेश्चन पूछा, उसने बोला जो दोषी है, दोषी के किसी तरह से भी वो लोग छोड़ेगा नहीं. बोला है कि शेख शाहजहां वो भी अरेस्ट होगा. और जो ग्रामवासी है, खास तरह से जो महिलाएं हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं, उसके कंप्लेन के बेस में वो लोग बोल रहे हैं कि जो किसी के छोड़ा नहीं जाएगा, जो जिसको नम में कंप्लेन है सबको बोला जा रहा है कि सबको पनिशमेंट मिलेगा. और आज सुबह में हम लोग देखा है डीजी गया, उसके बाद नेशनल जो टीम है एससी एसटी का चेयरमैन है वो लोग भी गया है, चेयरमैन सर गया कि वहाँ पे जो महिला लोग है उसके साथ बातें किए. वहाँ के जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के बारे में सब जो ग्रामवासी है उसके साथ वो लोग बात किया. ये भी जाना कि वो जो रिपोर्ट वहाँ से लेगा, खास करके जो महिला लोग जो उसके सामने जो कंप्लेन किया कि उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है, जो इलीगल कार्रवाई हुआ है, उसके साथ सबको लेके वो रिपोर्ट देंगे. फिर हमने देखा है जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी एक चिट्ठी, एक लेटर स्टेट को दिया गया है. जो घटना हुआ है, जो रिपोर्ट जाएगा, यहाँ से रिपोर्ट मंगाए और राज्य से वो स्टेट जो रिपोर्ट देगा वो रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा. ऐसे ही जो हम लोग को ऐसे ही खबर आ रहे हैं
हम लोग के पास। अब जब सवाल पूछ रहे थे कि पॉलिटिकल और सब कुछ को साइड रख के अभी जो डिमांड है वो डिमांड एक ही है। इतने दिन से जो वहाँ पे जो नाइंसाफ़ी हो रहा था, बेसिकली वोमेन को लेके, महिला को लेके जो नाइंसाफ़ी हो रहा था, इलीगल कार्रवाई हो रहा था, जो टीएमसी लीडर के नाम पे जो कंप्लेन है, सबको लेके वो लोग एक ही बात ही कर रहे हैं। जो ग्रामवासी है एक ही कथा बोल रहे हैं, एक ही डिमांड है कि शेख शाहजहां को अरेस्ट किया जाए। यही अभी वहाँ का सिचुएशन शोमा है। शोमा और शोमा डीजी गया है, राजनीतिक वो तत्वों की उसको भी अगर बात कर ली पकड़ जाए, है उसको। अगर राजनीतिक तत्वों की भी बात कर दी जाए इस कथित हमले में जिसमें शेख शाहजहां ने इन कथित घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया, ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरीके से घेर लिया गया है और शेख शाहजहां पे ये फंदा यूं मान लीजिए किसी तरीके से कसता चला जा रहा है। आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या कुछ देखा जा सकता है? आपने कहा एनएचआरसी के भी अफसर वहां पर थे, डीजी को भी वहां पर बुलाया गया, इससे पहले काफी और पॉलिटिकल लीडर्स भी वहां पर पहुंचे, उनको रोक दिया गया। शुवेंदु अधिकारी, लॉकेट बैनर्जी, लॉकेट चैटर्जी, आप जिनका भी नाम लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के हों तो खासकर उनको वहीं पर रोक दिया गया। आगे आने वाले दिनों में क्या ये फंदा जो कसता चला जा रहा है शेख शाहजहां पे, तृणमूल कांग्रेस पर किस तरीके का असर हो सकता है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस पर तो जो असर हो तो हो ही जाएगा, क्योंकि जो कंप्लेन हो रहा है, जो कंप्लेन हो तो खास तरह से टीएमसी लीडर है शेख शाहजहां, वो वहाँ पे कल टीएमसी लीडर है, और शिबू हाजरा जो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है, उत्तम सरदार जिसके नाम है वो टीएमसी दल की है। सो ये तो सामने आ ही गया है कि टीएमसी लीडर लोग ये ऐसे कार्रवाई कर रहे थे। और हमने देखा कल डीजी पहुंच गया, डीजी पहुंच जाके ऐसे बोला कि जो जिसके नाम पे कंप्लेन है उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो टीएमसी का नाम तो सामने उठ ही आ रहा है। तो ये बात तो सामने ही आ रहा है कि टीएमसी लीडर जो है, जो कंप्लेन हो रहा है, SC/ST चेयरमैन जो हो, जिसके सामने जो महिला लोग हैं वो जो कंप्लेन कर रहा है, वो तो नाम लेके कंप्लेन कर रहा है। शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, जो कार्रवाई उसके साथ किया है, नाइंसाफ़ी किया है, उसके बारे में जो बोल रहे हैं, डायरेक्ट उसने कंप्लेन किया है। सो टीएमसी को नाम को लेके जो कंप्लेन हुआ है, तो टीएमसी के अंदर में ये लेके तो थोड़ा टीएमसी बैकफुट में जा रहा है। ये तो सामने ही आ रहा है। जी बिल्कुल। Shoma Dash bringing us the latest details from Sandesh Khali. Many thanks for joining with us, Shoma. We're going to continue to keep coming back to you as and when you have more details for us. Of course, the demand is prime and singular: arrest Sheikh Shahjahan. This is what the people of Sandesh Khali want. At the same time, political brinkmanship will continue, but it seems like the TMC is really cornered on this issue, be it the National Commission for Scheduled Caste, be it the National Human Rights Commission, or the Director General of Police of West Bengal. They've all beelined to Sandesh Khali. What next for TMC and Sandesh Khali? Well, we'll have to find out, but certainly cornered at this point in time.